So friends, this is our new chapter, operations on rational numbers. First of all, let us see which numbers are said to be rational numbers. Before that, we have the knowledge about the numbers. Let us see about that. Okay. तो अब तक हमने देखा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, इन सभी नंबर्स के बारे में हमें इन नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है. Which numbers are natural numbers? The counting numbers are natural numbers. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity are the natural numbers. And when we include 0 before 1, that is 0 before the counting number, that number is set of whole number. Now, which are the integers? Integers are of two types, positive integers and negative integers. Positive integers may have the positive sign or not. It is a positive integer, means 3. Whether you give plus sign or not, it is a positive. But for the negative integers, it is must to give the negative sign. And fractions, 1 by 4 means fourth part of 1, third part of 2, second part of 1. All these numbers are said to be fractions. Fractions are the partial number. So up to this much we have the knowledge. So which numbers are said to be rational numbers now? Rational numbers. Rational numbers can be written in the form m by n, where m and n are any integers. But here condition is important, that n should not be 0. कंडीशन क्या है कि n 0 नहीं होना चाहिए. तो ऐसे सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं. मान लो कि ये जो फ्रैक्शंस हमने लिखे हैं वो भी रैशनल नंबर कह सकते हैं, राइट? क्योंकि 1/4 पॉजिटिव इंटीजर्स है. 2/3 को अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2/-3, ये भी रैशनल नंबर है, राइट? 4/7 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. 9/8 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. और इसको अगर हमने लिख दिया -9/8, ये भी रैशनल नंबर है. दोनों निगेटिव रहे, -9/8 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. ये रैशनल नंबर नहीं है. ओके. अब 4, सपोज 4, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? लेट अस सी. 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/1. ये आ गया m by n के फॉर्म में, राइट? m by n, वेयर m and n may be any integer. तो 4 और 1 पॉजिटिव इंटीजर हो गए. इस 4 को भी मैं 12/3 लिख सकता हूं. यानी ओनली 4 अगर कंसीडर करते हैं तो भी वो रैशनल नंबर है. ओके. नाउ let us deal with our practice set. It is about the addition of rational numbers. Let us see the addition of rational numbers. Practice set 22.
that is addition of rational number, carry out the addition of following rational number. उसमें फर्स्ट है 5/36 प्लस 6/42। ये दो रैशनल नंबर है, इनका एडिशन करना है। हमने फ्रैक्शन के एडिशन में देखा है कि फ्रैक्शन का एडिशन कब होता है, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में या दोनों रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर अलग अलग है, उसको पहले एक करने के लिए उसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। 36 और 42 का एलसीएम 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 2 जा 2 1 जा। ओके, अगेन 2 से नहीं होता है, 3 से कर देंगे, 3 6 जा 3 7 जा, राइट। नाउ द एलसीएम विल बी 2 into 3 into 6 into 7. That will be 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 7 जा, that is 252. ओके, अब 36 के फैक्टर्स देखो। 36 के फैक्टर होता है 2 into 3 into 6 और 42 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 3 into 7। ये 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए 252, 36 को 252 करने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और 42 को 252 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेट अस सी हियर 5 into 5/36 that should be multiplied numerator and denominator by 7, and 6/42 that should be multiplied at numerator and denominator by 6. What we will get here, 5 7s are 35, here 252, 6 6 are 36, the denominator will be 252. Now denominators are equal, 35 plus 36 divided by 252. The answer will be 71/252. Okay, now let's move towards the next. Second problem. One integer 2/3 plus 2 integer 4/5. अब ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 into 1 plus 2/3 ये मेथड है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 into 2 plus 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 plus 2 that is 5, 5/3 plus 5 2 जा 10, 10 plus 4 that is 14/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के यहाँ हम मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 विल बी हियर 3 into 5 एंड सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर दैट इज 3। डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं क्या देखेंगे, 5 5 25, 3 5 15, 14 3 5 3 okay. Now denominators are equal. Then next step will be 25 plus 42 divided by 15. Later on 25 plus 42 will be 67/15. अब चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 को 67, इनका डिवीजन कंप्लीट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 7 रिमाइंडर होता है, राइट। तो इसलिए इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज रहेगा
क्वोशंट आया 4, वो बन जाएगा इंटीजर और न्यूमरेटर में रिमाइंडर। ये आंसर भी और ये आंसर भी, दोनों भी आंसर इसी क्वेश्चन के लिख सकते। थर्ड वन, (11 by 17 प्लस 13 by 19। यहाँ पर भी फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से और सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटर कन्वर्शन फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से, सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। क्या होगा? 11 इंटू 19, that will be 209. 19 into 17 will be 323 plus 13 into 17 will be 221 and 19 into 17 the same 323. Denominators equal हो गए 209 plus 221 by 323। अब इसका न्यूमरेटर में एडिशन करने के बाद हमको मिलता है 430 डिवाइडेड बाय 323। दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ द फोर्थ वन, टू इंटीजर 3/11 प्लस 1 इंटीजर 3/77। ये क्या होगा? 11 इंटू 2 प्लस 3 बाय 11 प्लस 77 इंटू 1 प्लस 3 बाय 77। 11 2 is 22 plus 3, that will be 25 by 11 plus 77 plus 3, that will be 80 by 77। अब 11 को 77 बना सकते हैं। इंटर कन्वर्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर का हो सकता है, इसलिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 25/11 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट द डिनोमिनेटर 77, और 80 by 77 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा। दैट विल बी 25 7s are 175 by 77 प्लस 80 by 77। ओके, नाउ नेक्स्ट 175 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 77। 175 प्लस 80 क्या होगा? 255 by 77। ये रहेगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द subtraction of rational